धन्यवाद आयुष। आवाज आ रही है ना सबको? शब्दों की जादुई दुनिया है तो शब्द तो सुनाई देने चाहिए। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर रामनाथ झा सर, प्रोफेसर दिनेश खट्टर, प्रिंसिपल किरोड़ीमल कॉलेज, प्रवीण अंशुमन जी एनुअल कमेटी के कन्वीनर और को कन्वीनर ऑफ द एनुअल कमेटी, विशाल धवन जी जो मेरे सीनियर रहे हैं, और काफ़ी हलचल हो गई है रूम। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कॉलेज के इस प्रांगण में आना, और कभी कभी मैं सर से बात करता हूँ कि सर ये टॉपिक तो ऐसा है जो शायद हमारे को सूट नहीं कर रहा, फिर भी हम हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स की रिक्वेस्ट पर आते हैं। मुझे याद है कि मैं जब भी इस रूम में आता हूँ मुझे याद आता है कि ये मैथ्स डिपार्टमेंट का रूम होता था और यहाँ पर हमारी क्लास होती थी, और ये एक ब्यूटीफुल टाइम मैं मानता हूँ होता है ये फेब मार्च के करीब ना, व्हेन द विंटर्स आर गोइंग एंड समर्स आर कमिंग। एक्चुअली एट दैट टाइम देखा जाए तो जो ये इतनी कविताएं और ये सब है उस समय बहुत होती हैं, और हम लोग साहित्य के लोग हैं नहीं, और ना ही आपको मेरे से कोई कविता सुनने को मिलने वाली है। But what I have realized over the years is that communication is one of the strongest tools. And why it is one of the strongest tools? Let me take you back to the history of our evolution. When we go back to the history of our evolution, we study that survival of the fittest happened. There were hundreds and thousands of species that were fighting against each other. और ऐसा नहीं था कि ह्यूमन जो थे वो सबसे स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग हमसे ज़्यादा भी और स्पीशीज थी, डायनासोर्स भी थे और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज थी वो स्ट्रॉन्गर देन अस। बट व्हाट वाज वन थिंग व्हिच हेल्प्ड अस इन आवर सर्वाइवल? ऑफ कोर्स दे आल्सो कम्युनिकेट, all the other species were also communicating, but what was one thing which helped us in our own survival? And that was communicating with words. So ये शब्दों की जादुई दुनिया है। इसका आज के परिप्रेक्ष्य में भी एक उदाहरण है जो आप सबने देखा। कोरोना वायरस आया, वो हमसे ज्यादा तेज भाग रहा था, और अंततः तो हमने उसको हरा दिया। और क्यों हराया? क्योंकि हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि घर में बैठ जाओ तो सब घर में बैठ गए। ये है पावर ऑफ वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि वायरस हमसे कम था या हमसे तेज नहीं था, ये दो स्पीशीज के बीच में लड़ाई थी ना। बट व्हाट वाज द डिफरेंस? वायरस वाज मल्टीप्लाइंग, but at the end of the day we were in a position to beat this virus because we could communicate with words. Let me take you to the class. All of us teach, and it's wonderful to see house full of students at 9 a.m. in the morning, 10:30 in the morning. This is the best a teacher can get. It's a treat to the eyes actually. I have taught almost 10 years at Shahid Sukhdev College of Business Studies, and I used to see this every day. Things have changed since the time I have moved to the department. But, you know, at the end of the day, we all are developing our syllabi every year. You know, there is some change that is happening. Since NEP has come in, we are now moving to value-added courses, skill enhancement courses. But at the end of the day, one thing which all the teachers
also need to realize, and I am a teacher so I can tell this to myself as well, that content is important, but delivery is all the more important. I can easily say with full conviction that 51% of importance should be given to delivery and 49% of importance should be given to content. If you are prepared in your class, you will give the best. But even if you have knowledge and you do not know how to communicate, you may not give the best of the result. And that goes for the students as well. If students are in the best of their mindset and they are in the class, they will definitely absorb. But if they communicate in the proper way, they will not only have learning from their teachers, but they will also have learning from their peers. Now let us go a little beyond than our classrooms. Our communication is now all the more important for subjects where we have to teach students in more than one language. आज हिंदी, इंग्लिश और एक मदर टंग में भी लैंग्वेजेस में हम पढ़ा रहे हैं. And not only basic subjects, subjects like sciences, medical, engineering, they are now being taught in their native languages. और इसके लिए कम्युनिकेशन और ज़्यादा ज़रूरी हो गया. And if you see, today we all are global citizens. Just last year we hosted G20 in our country. Almost 21 now, including the African Union, participated in our country in this summit. So you can imagine the power of communication, how multiple translators, multiple communicators were required. And this reminds me of one more thing. The moment we cross our geographical boundaries, if you go to the UK, you'll see when rain comes there, it's usually winter time. What do they say? Rain, rain, come again. क्या बोलते हैं? Some other day. Right? And when we talk about rains in our country, what do we say? आयो रे झूम के सावन आयो रे. So this is the level of communication, this is the level of words that expresses our emotions. दोनों तरफ बारिश ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम उसका स्वागत कर रहे हैं, और वहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि आप किसी और दिन आना, आज ठंड ज़्यादा है. This is how the power of words changes. I'll take you to the top leadership of our country, our Honorable Prime Minister. Whenever I listen to him, he has a lot of content. Definitely, when the Prime Minister is going to speak to a place, his office is going to give him a lot of content. Points भी मिलते हैं, talking points भी मिलते हैं. But one thing which is there, which I have seen in the current leader, which I was not seeing in the past leaders, was how he is able to communicate with people in different languages. Recently he was in Saudi Arabia and he was communicated in Arabic. और उस पे फिर हजारों memes भी बनते हैं. But the point I am trying to make is, all of you are very young, you are going to be the leaders in your respective fields. You in fact already are leaders in your respective fields. We need to understand that communication is one of the most important tools that we have today. Sometimes even if you are not in a position to get what exactly is being taught in the class, you may be in a position to communicate properly and express your views in a way so that you get back what you want. We all have heard these words, introvert, extrovert, all these types of words. Where have these words come from? These words have come from the simple tool who is in a position to say what he or she feels and who is in a position to not say what he or
she feels. आज सर सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादातर कम्युनिकेशन सोशल मीडिया पे हो जाती है. युवा साथी बहुत बैठे हैं, थोड़ा सा लाइट मूड में ले जाते हैं इसको. व्हाट्सएप पे ही सारी बातें हो जाती हैं. फिर स्टूडेंट्स मेंटर मेंटी ये सब चलता है कॉलेज में, तो स्टूडेंट्स आके बोलते हैं सर कोई विशेष मित्र है उससे लड़ाई हो गई. मैंने कहा क्यों लड़ाई हो गई? सर व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, तो व्हाट्सएप से हट के जब फेस टू फेस बात करी तो फिर लड़ाई खत्म हो गई. तो ये है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन. तो व्हाट्सएप की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो और जो पहले की दुनिया थी उसको जी के देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कम्युनिकेशन की पावर क्या. पेशेंस कम हो गई है, कम्युनिकेट करने के डिफरेंट माध्यम बन गए हैं. आजकल लोग रील्स देखते हैं, रील्स में भी क्या है, अगर 5 सेकंड से ऊपर रील है तो उसको तुरंत हटा देते हैं, बिकॉज दैट इज़ द वे इट इज़. बट हमें कोई इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर हमारी पेशेंस कम हो रही है तो सबकी हो रही है. हमें तो अडेप्ट करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम अडेप्ट करते जाते हैं वैसे वैसे हम अच्छा करते जाते हैं. उसमें से व्हाट वी कैन टेक बेस्ट इज अप टू अस. अब मैं अपने काम की 2-4 बातें कर लेता हूँ, उसके बाद आई विल रैप अप. You know, one word which describes India today, whenever we talk, whenever we discuss, you know, I always ask students, if you have to describe yourself in one word, what is it going to be? आज अपने अपने बारे में सोचना घर जाके कि what is that one word which describes you. पर अगर आज भारत को, if we have to describe भारत, India in one word, in my opinion, it is arrived. India has today arrived at a position where India can go and take the next jump, quantum jump, to become developed, to become the best in the world. और हमें बेस्ट बनना है, वर्ल्ड के लिए नहीं बनना, हमें बेस्ट बनना है, अपने लिए बनना है. और अभी ऐसा भी कुछ नहीं करना कि बेस्ट बनना है तो कल से क्लास बंद कर दी और कुछ अब मार्च वार्च निकालने लग गए. ऐसे बेस्ट नहीं बनेंगे. बेस्ट बनना है तो अपने क्लास में अपने लिए बेस्ट करना है. बेस्ट बनना है तो अपने साथ रह के अपने साथी जो हमारे साथ पढ़ते हैं उन सब के लिए बेस्ट बनना है. एंड ऑफ कोर्स हमारा कॉलेज बेस्ट बनेगा, नंबर 1 बनेगा, हमारी यूनिवर्सिटी बेस्ट बनेगी, हमारे शिक्षण संस्थान अच्छे बनेंगे तो हम तो अपने आप बेस्ट बन जाएंगे. तो अपना अपना काम अच्छे से कर लेंगे तो अपने आप भारत भी विकसित हो जाएगा और हम बेस्ट भी बन जाएंगे. मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के कि आपकी जो मैगज़ीन कमेटी है उसको इतना एक तेजस्वी ओजस्वी व्यक्तित्व उसको देख रहा है. ये अपने आप में एक बड़ी बात है और मैं बधाई भी देना चाहूँगा प्रवीण अंशुमन जी को कि वो इतना समय निकाल रहे हैं. कभी कभी कॉलेज में खट्टर सर को पता है कि ये भी एक समय निकालना शिक्षकों के लिए मुश्किल हो जाता है. इतने काम और भी करते रहते हैं कॉलेज के बाहर, पर आप कॉलेज के लिए इतना समय निकाल रहे हैं, मैगजीन के लिए इतना समय निकाल रहे हैं. सराहनीय कार्य और आप सबको तालियां बजानी चाहिए अपने. हमारे वीसी साहब कहते हैं कि हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते, इसलिए आप अप्रिशिएट करिए कि आपको इतना अच्छा टीचर मिला है. आप अप्रिशिएट रोज करिए कि आपको इतना अच्छा कन्वीनर मिला है. और इसलिए बहुत अच्छी बात है कि हम सभी लोग ऐसे बढ़िया बढ़िया वर्ड्स और ऐसे बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स पे इकट्ठे हुए हैं. रामनाथ झा सर संस्कृत के हैं, बहुत अच्छा आपके सामने रखने वाले हैं. कुछ शायद कविता और 1-2 कपलेट्स भी ज़रूर बोलेंगे. मैं मैथमेटिक्स का रहा हूँ और इसलिए क्या है कि विशाल सर, खट्टर सर और मुझे तीनों को अलग बिठा दिया था. पहले एक तरफ कर दिया कि भाई मैथ्स वालों को उधर कर दो अलग. तो LHS इक्वल्स टू RHS आज है नहीं. LHS इज वे लेस देन RHS. बट हमें खुशी है, हम तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितना ये कविता और ये साहित्य और ये सब स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं उतना मैथ्स नहीं करते. और इसमें कोई बात नहीं है कि नहीं करते, लेकिन इतना पक्का है कि जब भी आप जो भी कुछ करें अपना 100% दें और अच्छे से करें. और ध्यान रखें कि हमारे साथ साथ हमें अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने साथ जो पढ़ रहे हैं उन सब का भी ध्यान रखना है, सोसाइटी का भी ध्यान रखना है. और सोसाइटी का ध्यान रखेंगे तो कंट्री का ध्यान अपने आप रखा जाएगा. थैंक यू.